کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے، زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آئے ہم جھکیں اور سجدہ کریں، اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ کاش کہ آج کے تم اس کی آواز سنتے، جلال باپ بیٹے اور اس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اس وقت اب تک رہے گا۔ آسمانی باپ بڑی عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ہم سب مل کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو سال کے آخر میں آج رات تک اکٹھا کیا تاکہ ہم نئے آنے والے سال کو، نئی آنے والی نئی روشنی کو ہم ویلکم کر سکیں، اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دن، آنے والے سال، آنے والے ہفتے، آنے والے ہر مہینے ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ بے شک اس گزرے سال میں مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریوں نے، وباؤں نے حملہ کیا، لیکن تو نے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا تاکہ آج رات ہم تیرے آگے جھک کر تیرا شکر ادا کر سکیں، تیرے رحم کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیرے کرم کے لیے، تیری مہربانی کے لیے، تیرے بڑے فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندہ رکھا۔ ہماری زندگی میں ایک اور نئے سال کا اضافہ تو کر رہا ہے، ہم ان سانسوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، حاضر جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آنے والے لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ اس وقت سفر میں ہیں ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، تو نے سلامتی کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچا۔ جو لوگ کمزوری کی حالت میں ہیں، جو لوگ بیماری کی حالت میں ہیں، جو لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں، جو لوگ امیدی کی حالت میں ہیں، جو مایوسی کی حالت میں ہیں، ہم ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، تیرا ہاتھ ان کی طرف بڑھے، ان کی پریشانیاں، ان کی غمگینی، ان کی اداسی امید میں بدل جائے، اور وہ ہر حال میں تیرے نام کا شکر ادا کریں۔ اس ساری عبادت میں تو خود ہمارا ہادی اور رہنما ہو، قائد کو اپنے پاک روح کی رہنمائی دے، تاکہ ہم تیری حمد و ثنا،
تیری ستائش روح اور جان سے کر سکے. اپنے لوگوں کو سردی کی شدت سے بچا اور آنے والا نیا سال ان سب کے لیے برکت کا باعث بنے. ہماری دعا کو، منت کو، شکر گزاری کو اپنے حضور قبول فرما. یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آئے ہم خداوند کا شکر ادا کریں. سر بڑھ کر گیتوں کی کتاب نکالے. گیت نمبر 220 کا ہے. Yeah.
کہ گزرا وقت جیسا بھی تھا، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، جیسے بھی حالات رہے، ہم نے ان سب کے لیے اس وقت خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ کئی بار زندگی میں جو دکھ ہے، جو درد ہے، جو تکلیف ہے، جو مشکل ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ اس لیے دو دعائیں کریں گے، ایک خواتین کی طرف سے، ایک مرد حضرات۔ پہلے خواتین میں سے کوئی بھی دعا میں رہنمائی کریں، شکر گزاری کریں، اجازت ہے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، چند الفاظوں میں، بہت لمبی دعا نہیں، شکر گزاری کیجیے صرف۔ پھر بھائیوں میں سے کوئی بھی۔ اے قدوس قدوس مہربان خداوند، میں تقدیر کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کے اس خوشی موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا۔ اے خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے کہ ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے زندہ پاک خداوند، بیٹھی ہوئی جانوں کو تیرے پاس لے کر آتی ہوں۔ خداوند، ہم اپنے دلوں کو تیرے سامنے انڈھیل دیتے ہیں، اور خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا۔ ہزارہا لوگ اس دن کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن نہ دیکھ سکے۔ تیرے خداوند، میں تجھ سے منت کرتی ہوں، خداوند ہم دل سے شکر گزاری کرتے ہیں۔ گزرے ہوئے سال میں خداوند، جبکہ خداوند کئی طرح کی وباؤں اور بلاؤں کے خداوند زمرے میں رہے، پوری دنیا خداوند جبکہ کورونا کے خداوند وبا میں مبتلا رہی، تو بھی خداوند ان سارے مراحل میں سے نکال کر خداوند تو ہمیں اپنے گھر میں لے کر آیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ایک ایک جان کے لیے تیرا شکر ہو خداوند۔ ہمارے دل تیری شکر گزاری سے لبریز ہے۔ زندہ پاک خداوند، جب ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں تو خداوند نئے سال میں نہ صرف ہم جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی ترقی کریں اور ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال بخشے۔ یسوع کے قوی اور قادر نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے اور پالتے ہیں، آمین۔ بھائیوں میں سے کوئی بھی آزادی ہے، چند الفاظ میں شکر گزاری کیجیے۔ نہایت رحیم خداوند، ہم آپ کا شکر کرتے اس وقت کے لیے کہ آج ہم سارے آپ کے حضور خداوند چکے ہوئے ہیں۔ خدا ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی لائف ڈائسس کے لیے، چرچ آف پاکستان کے لیے، اپنے پاسٹر صاحبان کے ان کے خاندان کے لیے، کلیسیا کے ایک ایک خاندان کے لیے شکر کرتے ہیں خداوند۔ کیونکہ خداوند کچھ ہمارے بزرگ، کچھ بچے، کچھ نوجوان اگر کوئی خداوند آج ہم میں نہیں بیٹھے ہماری کلیسیا میں سے خداوند، تو ہم ان کے خاندانوں کے لیے بھی خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے حضور میں جھکتے ہیں خداوند۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے لیے، اور خاص کر کے باپ آپ کے لیے کہ آپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتا کا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پہ ایمان لائے اللہ کا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جیسس باپ، ہم آپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر اپنی جان دی، اتنا پیار کوئی نہیں کرتا۔ اس شکر گزاری سے ہمارے دل، ہماری روحیں، ہماری جانیں آپ کے آگے جھکی ہوئی ہیں کہ خداوند ہمیشہ خدا ہم کم ہو، خداوند آپ کا نام بڑھے، ہماری کلیسیا بڑھے، اور خداوند جہاں جائے خداوند آپ کے نام سے بہتر جائے۔ ہماری کلیسیا کو، ہمارے ملک کے پاکستان کو بڑی برکت دے، اور آنے والے وقتوں میں اور خداوند زیادہ سے زیادہ اپنے لیے استعمال کر۔ یہ سب کچھ مانتے اپنی مسیح یسوع کے جلالی اور زندہ نام میں، آمین۔ حضرات، میری اور آپ کی نصیحت کے لیے دو حوالے ہیں، نکالے ذرا حوالہ تاکہ گھر میں بھی جا کے آپ دیکھ سکیں۔ صفحہ نمبر 196 196، یہ جو بائبل آپ کے سامنے پڑی ہے ہم نے لکھی ہے چرچ میں، 196 استثناء 30واں باب چیپٹر 30 ورس 7 to 11، 7ویں آیت سے 11ویں آیت۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پڑھیں۔ آج کا جو دوسرا بیٹا، ابھی نہیں، میں جب بلاؤں گا پھر اپنے سامنے آئے۔ آج کا دوسرا بیٹا مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، دوسرا باب 15ویں سے 20ویں آیت۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، دوسرا باب 15ویں سے 20ویں آیت، صفحہ نمبر 54 کوئی اور تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ شاباش۔ یہ دو تلاوتیں آج شام، اس کے درمیان
हम एक गीत गाएंगे और वो गीत खुदा से बरकत मांगेंगे। 280 नंबर गीत होगा, खुदा तुझको दे बरकतें बेबहा। कल सुबह की जो इबादत होगी वो 10:30 बजे होगी। नए साल की बड़ी इबादत कल 10:30 बजे हम खुदा के घर में करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, नए साल में दाखिल होंगे, नए साल का पैगाम सुनेंगे। अभी इस वक्त जो पैगाम होगा चंद बातें गुज़रे साल की होगी और चंद बातें आइंदा आने वाला साल जिसमें नया कदम रख रहे हैं। इसलिए इन दोनों हवालों को जरा गौर से देख लें और इनसे पहले एक ज़बूर हम गाएंगे और वो ज़बूर 37 है। निकाले जरा ज़बूर 37। ज़मीन दे वारिस होंगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कटे जाओगे। और आपने देखना है कि ये ज़बूर जो हम गाएंगे अभी, जब हम तिलावत सुनेंगे तो इस ज़बूर के साथ कितना गहरा ताल्लुक होगा उसका। इसलिए अगर गुज़रे साल में परेशानियां हुई हैं, मुश्किलात भी हुई हैं, लेकिन आप खुश हो के ना नए साल में कदम रखें। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई मुश्किल है, परेशानी है। किसी के दिल में उदासी है, किसी के दिल में परेशानी है, किसी के दिल में गमगीनी है और बहुत सारे काम हैं जो हम करना चाह रहे थे लेकिन हमसे नहीं हुए। लेकिन ये ज़बूर खड़े होकर हम गाएंगे, जो बैठना चाहते हैं बैठे। ज़मीन दे वारिस होंगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कटे जाओगे। Hallelujah.
कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए। दिलो सुने वाले कान ताकत खुदावंद हम तेरे जिंदा पाक नाम के इस्लाम को जब सुने समझे खुदावंद हमारे दिल पर नमस्कार। जितने लोग इकट्ठे हैं खुदावंद एक दिल जान बदन के साथ हो, सब लोग तेरे घर में आए हैं। गुजरे साल में तूने हमारी बड़ी मदद और हिफाजत की खुदावंद। किसी तरह 2023 साल जब आने वाला है हमारी जिंदगी में, तो खुदावंद कुछ जानते हैं हमारी जिंदगी के लिए। खुदावंद पाक खुदा जितने भी तेरे आगे सर नबू है, एक एक के साथ होना, बरकत देना। खुदावंद पाक खुदा अपने बंदा के साथ होना, उनको साथ से लेकर पाँव तक छूना, पाक रूह का प्यारा मसा का करना। खुदावंद जो कुछ बोले वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हम तक पहुँचे। उसी हमारे खुदावंद के वसीला से बड़े ईमान से जो मांगे सो पाया। आमीन। की सलामती हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इस्तेस्ना उसका 30वां बाब और उसकी 7 से 11वीं आयत हमारे लिए आज की तलावत। और खुदावंद तेरा खुदा सब लानतें तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाज़िल करेगा, और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चौपायों के बच्चों और जमीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको बुरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा, जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आयन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर रहे। खुदावंद के इस पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। Amen.
इंजील मुकद्दस की तरफ से हम सुनेंगे। बेटा ये सामने आ जाए, सब लोग बड़े अदब से खड़े होंगे, कलाम मुकद्दस की तिलावत हम सुनेंगे। जी बेटा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की किताब उसका 2 बाब 15 से लेकर 20 आयत तक। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को जो चंडी पे पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदावंद के पाक नाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए पैसे बढ़कर आमीन। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पढ़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस की हुकूमत में दुख उठाया, मजदूर हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे हवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुरेश कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त। सब बोले हम दुआ मांगे, चंद अल्फाज में मेरे लिए दुआ करें। दुआ करें। ऐ क़ुद्दूस मेहरबान रब्बुल अफ़वाज, ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी में तेरी पाक हज़ूरी में सब इकट्ठे हुए हैं और शुक्रगुज़ारी करते हैं तेरे ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम के लिए। आसमानी बाप, इस वक्त तू हमारे दिलों को अपने कलाम की बातों के लिए तैयार कर, ताकि हम तेरे नाम में बढ़े और तरक्की करें और साल का आगाज़ तेरे बाबरकत नाम से करें। आसमानी बाप, हम तेरे बंदा नपाई साहब को तेरी पाक हज़ूरी में रखते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि आज का कलाम जब तू अपने लोगों से करता है तो अपने बंदे के वसीला से करे और ये बंदा तेरी ज़ुबान बनकर हमसे बातें करे। आसमानी बाप, हम सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शना। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पाते हैं, आमीन। सताइश आपने खुदावंद की हुजूरी में की है, खुदावंद से अपने हुजूर को बोल फरमाएं। आप सबको गुज़रा साल भी मुबारक हो। जिनके अजीज उनसे जुदा हुए हैं, हम उन खानदानों के साथ अफसोस का इजहार करते हैं। कल गुजरे दिन बसमसून बाकायदगी के साथ खुदा उनके घर में आते थे, खुदा उन्हें सो गए। पहले खुशी मसीह, अब उनके वाले साहब वो 2-3 दिन पहले खुदा उन्हें सो गए। ये खुदा के हाथ में है जिंदगी, मेरी और आपकी जिंदगी। रूह पर सिर्फ और सिर्फ किसका अख्तियार है? खुदा का अख्तियार। और वो जब चाहे अपने लोगों को अपने पास वापस बुला लेता है। जिस गीत में मैंने और आपने ये गाया है, ये ईमान है हमारा। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिले, जो है बाकी उनको रोहे मिलना चाहिए, ताकि वो रूह की रहनुमाई में पाक रूह की हदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करें। हम कहते हैं कि मुझ में खुदा का रूह है, हाँ है, इसलिए मैं और आप बातचीत करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जब मैं और आप कहते हैं कि मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा मिला, फिर आपके रवैये से भी नजर आना चाहिए, फिर आपकी गुफ्तगू से भी नजर आना चाहिए, फिर आपके चाल चलन से भी नजर आना चाहिए। दूसरा, मेरी और आपकी इस वजह से, इस किरदार से, इस चाल चलन से, इस गुफ्तगू से जाने, वो खुद कहे, मैं खुद ना करूं। इसलिए
आज रात का जो पैगाम है, इसको आप मामूली ना समझें। इन बातों को सिर्फ 2-3 लफ्ज़ अपने साथ लेके जाएं, फिर देखिए आपकी शख्सी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में, जिस्मानी जिंदगी में, समाजी जिंदगी में, और आजकल नफ्सियाती बड़ी बीमारी है, नफ्सियाती जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा। सबसे अहम बड़ी बात आज रात जो आपने आने वाले वक्त के लिए सीखना है, जो मुझ में और आप में आजकल जिसका बड़ा फुकदान है, बहुत कम है, वो है सब्र। हम नहीं सब्र करते, मैं भी ऐसे ही। हमारी गली में बड़ी गाड़ियां, जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो रास्ता नहीं होता, जब वापस आते हैं रास्ता नहीं होता, गलत जगह पे भी गई खड़ी करके चले जाते हैं, तो फिर नाराजगी तो होती है, गुस्सा तो आता है, लेकिन वो गुस्सा, वो नाराजगी आपको बहुत दूर ले जाती है। मुझे भी कभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, जब हम आए बहुत बड़ी गाड़ी को खड़ी करके चला गया, 2-3 मिनट सब्र ही किया। सब्र करने का फायदा क्या, किसको फायदा? लड़ाई में भी आप सब्र कर लें, लड़ाई खत्म हो जाती है। गुफ्तगू करते हुए, नाराज होते हुए, तैश में आते हुए, ये गुज़रे साल में कोई अच्छा दौर ये नहीं था, खूनी दौर था। आप ये ना समझे कि अगर मेरे और आपके रवैये में तब्दीली ना आई तो ये 2023 का साल बड़ा अच्छा खुशगवार होगा। सालों को, हफ्तों को, दिनों को, लम्हात को इंसान खुद खुशगवार बनाता है। अगर इंसान चाहे तो ये गुजरा दौर, ये गुजरे साल, ये गुजरे दिन, ये खूनी दौर था। आने वाले वक्त में भी ऐसा होगा अगर मैंने और आपने अपने आप को न तब्दील किया। मैं सारी दुनिया को बदलना चाहता हूं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलता। ये आपकी भी स्टोरी यही है। मैं चाहता हूं दूसरे ठीक हो जाएं, दूसरे खामोश हो जाएं, दूसरे मेरी बात माने, दूसरे सब अच्छा कहें, लेकिन मैं अपने आप को तब्दील नहीं करता। बड़ा मेहरबानी आज रात इस बात के हम खुदा के साथ कर लें कि मैंने अपने आप को बदलना है, दूसरों को छोड़ दें। आप खुद बदल जाएं, आपका खुद रवैया ठीक हो, आपकी खुद सोच ठीक हो, तो दूसरा भी ठीक हो। जब आप किसी से प्यार से बात करेंगे तो दूसरा भी आपके साथ प्यार से बात करेगा। जब आप किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे वो भी ऐसे ही होगा। हमारा मुआशरा इस वक्त सख्त लफ्ज़ बोलने लगो, इस वक्त बदज़बान, बदतमीज जितना कहें, ऊपर से लेकर नीचे तक, हुक्मरानों से लेकर एक आम आदमी तक, सब लोग तमीज छोड़ गए। घरों में भी ऐसे, बच्चों में भी ऐसे, हमारे दरमियान ऐसा। आप उसमें गुफ्तगू करते हुए कई दफा हमारे अंदर ऐसी बातें आ जाती। बड़ा मेहरबानी, आपने मेरी तकरीर यहाँ सुनी होगी, मैंने कौमी असेंबली में भी जाके यही कहा कि क्या सीख रहे हैं, बदतमीजी सीख रहे हैं। बैठें, डायलॉग करें, और माशरे को अगर आप चाहते हैं कि ये दुरुस्त हो जाए तो फिर अपने आप को पहले बदलें। लोग तो आपको देखते रहते हैं टीवी पे, आपकी बातों को देखते हैं। हमने हमेशा, जब से मैं घर था तो मैं अपने बचपन में चला गया, मैं बच्चा था, उन बूढ़ा हाँ, और नस्ल सादक। अब सादक की जो नस्ल है, जो सदाकत में चलने वाला शख्स है, वो कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो पादरी हो, नो, आम शख्स, छोटे से छोटा, जिसे आप कुछ भी न समझते हो, शायद वो आपसे और मुझसे ज्यादा सादक हो, वो सदाकत से चलता हो, और मैं और आप शायद ना चलते हो। मैं बच्चा सा हूं, बूढ़ा हाँ, पर नस्ल सादक दी न कदी देखी है न चाह,
एक टुक्कर मंगती। अगर आप ऐसे शख्स को रास्ते में जहां कहीं भी देखें कि वाकई वो ऐसा शख्स है, उसको जरूरत है, अगर आपने उसकी मदद कर दी है ना, आपने उसको खाने खिला दिया, फिर भी आप साथ हैं। कई दफा हम ऐसा नहीं करते। मैं और आप आज की रात गुजरे साल को याद करते हुए, गुजरे वक्त को याद करते हुए, जो मैं पहले कह चुका हूं कि खूनी था, जो शर्मनाक था, गुफ्तगू करते हुए आप किसी दफ्तर में चले जाएं, आप कारखाने में चले जाएं, आप रोड पे चले जाएं, आप मोहल्ले में चले जाएं, आप किसी भी जगह खड़े हो जाएं, आपको जहां 2-3 लोग खड़े नजर आएंगे जो गुफ्तगू कर रहे होंगे, आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितनी शाइस्तगी के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। शाइस्तगी का मतलब आता है, कोई बता सकता है शाइस्तगी क्या होती है? क्योंकि कलाम में लिखा है रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है, अंधेरा खत्म होने वाला है, तो बड़ी शाइस्तगी के साथ चलें जैसा दिन को चलना दस्तूर है। अब जब दिन होता है उस वक्त मेरी और आपकी चाल, और रात को जब अंधेरा होता है मेरी और आपकी चाल में फर्क होता है। दिन को हम शाइस्तगी से चलते रहे, पता चलता है कि क्या पत्थर है, क्या है, अनबैलेंस जगह। आने वाले वक्त में, आने वाले नए साल में पहली बात शुक्रगुजारी करिए। शुक्र करने वाला बंदा बड़े दिल का बंदा होता है, और शुक्रगुजारी वही शख्स कर सकता है जो सखी है। सखी का क्या मतलब होता है? क्या देने वाला? पैसे बांटने वाला? नो, जरूरी नहीं पैसे। सखी देने वाला है जो दूसरों पर रहम करता है, जो दूसरों पर मेहमान है, जो दूसरे की मदद करता है, जो दूसरे की इज्जत करता है, जो दूसरे का एहतराम करता है, वो भी सखी आदमी है। आप सखी बने, शुक्रगुजारी करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसके रहम के लिए, इसके फजल के लिए कि खुदा ने मुझे और आपको संभाला, और फिर वापस आते हैं उस लफ्ज पर जो पहला था, सब्र। ये मुझे और आपको मुश्किलात से बचा लेता है। सब्र कर ले, बड़ी मुश्किलात से आप बच जाएंगे। नहीं सब्र करेंगे नुकसान होगा, हादसा होगा, परेशानी होगी। सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने पहले की है, शुक्र करना है, ये मोहब्बत को बढ़ाता है। जब आप किसी का शुक्रिया भी जाके अदा कर देते हैं ना, दूसरी दफा वो शख्स आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, एहतराम करता है, इसलिए कि आपने शुक्र किया। खुदा का हर लम्हा शुक्र किया करें, उसके फजल के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। मैं और आप इस दौर में, जिस दौर में से मैं और आप गुजर रहे हैं, कोई ऐसी बात मुझ में और आप में नहीं है। मैं एक हवाला निकालने लगा, अगर आप निकालना चाहें तो जरूर मेरे साथ निकालें। ये शाह नबी का हवाला है, 11वां बाब है। चंद बातें इसमें मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में इन बातों की वजह से तब्दीली आई है। वहां पे खुदा के कलाम में 12वां बाब है। 12वां बाब पहली 2 आयतें मैं पढ़ूंगा, और से सुने, आपकी जिंदगी में भी तब्दीली आ सकती है। और उस वक्त तू कहेगा, आए खुदा मैं तेरी सताइश करूंगा, अगरचे तू मुझसे नाखुश था। खुदा गुजरे वक्त में पता नहीं मुझसे नाखुश था, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी कमजोरियां, लेकिन खुदा का फजल देखिए। मैं दोबारा पढ़ने लगा। उस वक्त तू कहेगा, खुदा मैं तेरी सताइश करूंगा, अगरचे तू मुझसे नाखुश था, मैंने तुझे खुश करने वाले तो काम नहीं किए, तो भी तेरा कहर टल गया और तूने मुझे तसल्ली दी। खुदा का कहर मुझ पर और आप पर जो आना था टल गया, और नए साल में मैं और आप कदम रख रहे हैं। ये आयत मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं कि मुझ में कोई इतनी खूबी नहीं थी
کہ دوسرے لوگ جس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنی کمزوری کے سبب سے گئے نہیں، ان کا وقت آیا. میں اور آپ زندہ کیوں ہیں؟ خدا نے مجھ پر اور آپ پر فضل کیا، اس کا قہر ٹل گیا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو پست ہونے سے بچا لیا ہے. خدا نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے. فکریں بڑی ہیں مجھے اور آپ، لیکن وہ ذاتی فکریں ہیں جو ہم نے خود پیدا کی ہیں. ہر بندہ فکر میں ہے. کسی کے پاس کھڑے ہو کے دیکھ لیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، دکھوں سے بھرا ہوا ہے. گھر میں اس کو مشکل ہے، دفتر میں، کارخانے میں، جہاں بھی جاتا ہے اس کے اندر دیکھیں. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک خاتون بازار گئی اور گلدان خریدنا چاہتی تھی. بڑے اچھے تھے، لیکن ایک چھوٹے گلدان کی قیمت زیادہ تھی اور ایک بڑا گلدان خوبصورت بھی تھا، اچھا لگ رہا تھا. اس کی قیمت جب اس نے پوچھی تو وہ کم تھی. اب بڑی خوشی کہ یہ چھوٹا گلدان زیادہ قیمتی ہے، مہنگا ہے، اور بڑا گلدان جو سے کئی درجے خوبصورت ہے، اچھا بنا ہوا ہے، یہ کیوں سستا ہے؟ وہ لینا چاہتی ہے. دکاندار سے اس نے کہا کہ میں یہ لینا چاہتا ہوں. دکاندار نے اس کو کہا ضرور لیں، لیکن ایک دفعہ اس کے اندر دیکھ لیں یہ کیسا ہے. جب اس نے اندر سے دیکھا تو وہ گلدان اندر سے کیسا تھا؟ بولے کریک ہوا ہوا تھا کئی جگہوں سے. باہر سے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اندر سے وہ بہت جگہ سے ٹوٹا. میں اور آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، باہر سے خوبصورت ہے، ہرے بھرے نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے خداوند یسوع سے جا رہے تھے انجیر کے درخت کی طرف کہ یہ درخت اب پھل کا موقع ہے. لگا ہوگا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ درخت تو ہرا بھرا تھا بھائی، لیکن اس میں پھل نہیں. میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، دوستوں، آج غور کر لیں یہ پودا جو خدا نے لگایا آپ میرا کتنا پھل گزرے سالوں میں لگا. اوپر سے شاید ہرے بھرے، لیکن اندر سے خالی ہے. پھر کیا ہوا؟ اس درخت کو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ تو نکالے. پھر حوالہ جو آج پڑھا گیا، شاباش، خوش ہو کے حوالہ نکالے. یہ آئے گا آپ مجھ پہ اور آپ پہ کہ میں اور آپ کیسے ہیں. 7ویں آیت غور سے دیکھیں. سب سے پہلے میں شاید کو اپنے اوپر لیتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خدا تیرا خدا یہ سب لعنتیں جو تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا. آپ سن لیں، اگر آپ کسی کو ستاتے ہیں نا تو لعنتیں آپ پہ آتی ہیں. بائبل میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ جن لوگوں نے تجھے ستایا یہ لعنتیں ان پر آئے. اب آپ نے غور سے اپنی شخصی زندگی پہ دیکھنا ہے. کئی دفعہ گھر میں بیٹھے یہاں دوسروں کو چھوڑ دے، بیوی کے ساتھ یہ ایسی بات کر، ایک فکرے کہہ دیتے ہیں، وہ بیچاری سارا دن پریشان ہو جاتی ہے. ستایا نا ہم نے اس کو. سادہ بات کر رہا ہوں، مرد بھی ایسے ہیں اور خواتین بھی ایسے ہیں. جن لوگوں نے اے میرے لوگوں جنہوں نے آپ کے ساتھ کینہ رکھا، دشمنی رکھی، جن لوگوں نے آپ کو مشکلات میں ڈالا، جن لوگوں کی وجہ سے آپ فکر مند ہوئے، یہ ساری لعنتیں ان پر آئیں. اور تو لوٹے گا. میرے لیے یہ بات ہے، آپ کے لیے لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اے بیٹے گھر لوٹا، اور دستمال بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس رستے میں تو جا رہا ہے یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اس کو چھوڑ.
वापस जिंदगी के रास्ते पर आ जा, क्योंकि खुदा गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। अगर गुज़रे साल में मैं और आप किसी भी बात में, किसी भी गुनाह में गिर चुके हैं, तो खुदा मुझे और आपको बचा लेगा, उठा खड़ा करेगा, गिरावट रहने देगा। यही बात मैं कहता हूं कि फिक्र किया करें, क्योंकि फिक्र गुनाहों से रोकता है। और जो लोग कहते हैं फिक्र ही कोई नहीं, वो कोई फिक्र नहीं मैंने, अगर मैंने ये कह भी दिया तो क्या हो गया? और भाई मेरे, जो तू कह दिया ना, इसका आपको बदला खुदा ने देना है, इसलिए सोच के ज़बान में इस्तेमाल करें, फिक्र करें इसकी कि मैंने क्यों किसी को सताया। लानत का काम है ये। इसीलिए मैंने कहा था जमीन दे वाले सोमन के मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उते लानत है वो। एक मीटिंग में मैंने कह दिया कि जमीन दे वाला सोमन के मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उते लानत है वो बेची जाओगे। आजकल इतनी जमीनें मिशन की बेच रहे हैं लोग, क्योंकि उनकी अपनी नहीं है, उन्होंने मेहनत नहीं की। मिशन की जमीन है, दूसरे की जमीन है, उस पे कब्जा। जमीन दे वाले सोबन के मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उते लानत है वो बेची जाओगी। तो लानत उन पर गिर रही है। मैं आपको बता दूं, तू अपनी अखियां तो हाल देखेगा शरीरा था, इसलिए शरारत ना किया करे बराबर पर कोई भी शख्स, बच्चों से लेकर बड़ों तक। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारे छोटे बच्चे जब आपस में खेल रहे होते हैं, शरारत करते हैं ना, वो शरारत तो करते हैं, लेकिन एक खूबी है उनमें, साजिश नहीं करते। हम साजिशी बन जाते हैं बड़े लोग, कभी साजिश का हिस्सा ना बने, ये लानत है। इसलिए खुदा के कलाम में क्या है, तू लौट आएगा, खुदा तेरी बात को सुनेगा इस नए साल में, और उसके सब हुक्मों पर जो मैं तुझको देता हूं अमल करे। अगर तू अमल करेगा तो फिर बरकतें हैं, नहीं करेगा तो लानतें हैं। और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आखिरात और चौपायों के बच्चों और जमीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको बरोमंद करेगा। जितनी घर में आपके पास चीजें हैं ना, जितने वसाइल हैं, उनमें खुदा इजाफा करेगा नए साल में। बशर्ते कि आप इन बातों पर अमल करें जो खुदा मुझे और आपको देता है, इन बातों पर अमल करें। सबसे बड़ी और अहम बात जो उसने यहां पे की, लिखा है खुदावंद तेरी भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा। अगर गुजरे साल में ना खुश था, उसका कहर टल गया, लेकिन अगर इस नए साल में तू भलाई के काम करे, अच्छे काम करे, तो फिर तेरा खुदा तुझसे खुश होगा। यह पढ़ने लगा दोबारा, अगर तू ऐसा करे तो खुदावंद तेरी भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा, जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था। मेरे और आपके जो बाप दादा थे ना, वो क्यों खुश थे? सादा लोग थे, सादा ईमान के लोग थे, उनके घरों से अनाज ही खत्म नहीं होता था। अभी घर में पुराना अनाज होता था, नया आ जाता था। कितनी कितनी देर तक एक दूसरे के साथ बैठे रहते थे। अजीज रिश्तेदार, बहन भाई, बच्चे एक दूसरे के घर कितने कितने दिन जाकर रहते थे। आज हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। पहली बात तो यह है कि हम कहते हैं जी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं मसरूफ हूं जी, बिजी बड़े हैं। रिश्तेदारों में वो एहसास खत्म हो चुका है। ये बरकत की बात नहीं है, आप अच्छे घर में रह रहे हो,
कितने ही ज्यादा वसाइल क्यों ना हो, कच्चे घरों में वो लोग रहते, लेकिन लोग सच्चे थे। वो खुश होगा तेरे से जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था, इसलिए कि वो जो कुछ सुनते थे उस पर अमल करते थे। आज आप बच्चों से बात कर ले, वो आगे से करते हैं। क्यों? मेरे और आपके बाप दादा, फोर फादर्स, खुदा उनसे, उनकी जिंदगी से, उनकी गुफ्तगू से, उनके रवैयों से खुश था। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था कि उनका कोई रिश्तेदार भूखा हो, उनका कोई रिश्तेदार गरीब हो, उनका कोई रिश्तेदार मुश्किल में हो। खुदा ना करे किसी के घर में फौतगी हो जाती थी, 8 दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, आपके अजीज रिश्तेदार खाना देते थे। ऐसा होता था? आज है? आज जो मर्यादा कल तो ज्यादा है ना, बस आज डेथ हो गई, दफन कर देते, कल गुरुदारी दुआ करो, खत्म। ये है आज का एहसास। खुदा उनसे खुश था। खुदा मुझसे और आपसे शायद गुजरे साल में ना खुश था, लेकिन उसका कहर टल गया और उसने मेरी और आपकी जिंदगी में नए साल का इजाफा कर दिया। आगे लिखा है, बशर्ते के तू क्या करना है, चंद सादा बातें। बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आइन को माने जो शरीयत और इस किताब में लिखे हैं, और फिर तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे। और जिन बातों का मैं तुझे हुक्म देता हूं तेरे दिल पर नक्श हैं। कौन सी बातें जो दिल पे नक्श करनी है? खुदा की बातें ना जो सुनते हैं। मैं और आपके किसकी बातें दिल में नक्श करते हैं? ला भाई मैं तेरी गल दिल से लिख लिया और मैं तेरे को बदला दवांगा। रिश्तेदारों में, दोस्तों में, भाइयों में, अजीजों में, किसी भी कोई भी बात हो, मैं दिल से लिख ली। वो कहता है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और जिन बातों का मैं तुझे हुक्म देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। किस लिए? फिर तुम्हें अपनी औलाद के ज़हनशीन करना। फिर औलाद वो सादक की होगी। अपनी औलाद के ज़हनशीन करना, घर बैठे, राह चलते, उठते और लेटते वक्त इनका जिक्र किया। आखिरी बात, आप खुद मुझे बताएं, हम में से कौन सा ऐसा शख्स है यहां पे जो खुदा की इन बातों को अपनी औलाद के साथ घर बैठे, राह चलते, उठते और लेटते वक्त करता है? हम तो 4-5 घर के लोग इकट्ठे बैठे हो ना, सारे अपना अपना वो मोबाइल फोन पकड़ा है, बैठे होते हैं। दूसरे कमरे से बुलाना भी हो तो कॉल करते हैं। कहां गया? तो इसे अपनी औलाद के ज़हनशीन करना, घर बैठे। क्या ज़हनशीन किया हमने? मैंने और आपने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, और हमारे बच्चों ने भी जो बातें हम सिखाते हैं वो नहीं सीखी। इसलिए कि जो कुछ हम करते हैं वो वही करते हैं। तो इन्हें अपनी औलाद के ज़हनशीन करना, घर बैठे, राह चलते, उठते और लेटते वक्त उनका जिक्र किया करना। घर बैठे तो मैं बात बता दी आपको ना कि हम कैसे बैठे होते हैं सारे। राह चलते हुए क्या है? सांप लगाने को दी, यहाँ पता नहीं कि 300 चर्च है। बाप किसी चर्च जाता है, माँ किसी चर्च जाती है, बच्चे किसी चर्च, रिश्तेदारों के चर्च में चले जाते हैं जो घर में बने लिखे के। क्यों? कहां जिक्र करते हैं मैं और आप अपने बच्चों से? घर बैठे, राह चलते, उठते। हमारा तो उठना ही आजकल बड़ा मुश्किल है। रात को बच्चे लेट सोते हैं, सुबह उठते नहीं है। की कर रहे सन बच्चे भाई? रात को पढ़ रहे सन, तो हम नहीं पता पढ़ रहे थे कि फेसबुक पर बैठे हैं। भाई ध्यान रखें इस नए साल में। फिर मैं कहना कि हमारी औलाद हमारे हाथों से निकल गई है,
خاندان تباہ ہو رہے ہیں, طلاق کی ریشو ہمارے مسیحی لوگوں میں بڑھ گئی ہے. یہ بھی لعنت ہے, ہم پہ لعنت ہے. یہ آپ ان کو چھوٹی باتیں نہ سمجھیں. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا سے ڈر کے آپ کی منت کرتا ہوں, اپنے گھر کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. کیا دیکھتے ہیں وہ, کس سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں, کس طرح کے ان کے دوست ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, پریشان ہوتا ہوں. کبھی نہ اخبار کے اوپر کبھی نام آیا تھا, نہ تھانوں میں باہر کسی کا نام لکھا ہوتا تھا کہ یہ مسیحی شخص ہے. آج بھرے پڑے ہیں, چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, رہزن بھی ہیں, ہر طرح کے کام کرتے ہیں. یا تو میں اور میرے تمام مذہبی لیڈر ناکام ہو گئے ہیں, یا پھر مذہب میں کام ہو گئے ہیں, یا والدین پیسے میں قصور ہے, یا ہماری اپنی جو کارکردگی ہے اس پہ ذرا غور کریں. نئے سال کا مطلب آج کی رات کا یہی ہے, اپنا اپنا احتساب کریں. وہ والا احتساب چھوڑ دیں جو عدالتیں کرتی ہیں. اپنا احتساب خود کریں, ایویلویشن کریں اپنی. میں نے کیا کیا گزرے سال میں, گزرے وقت میں, میری جو ذمہ داری تھی کیا میں نے اپنی پوری کی ہے یا نہیں کی. نہیں کی تو آج ارادہ کر کے نئے سال میں قدم رکھیں. جب کوئی شخص اقرار کر لیتا ہے, میں نے کئی دفعہ اقرار کیا کہ ہمارا قصور ہے, ہماری غلطی ہے, جو مذہبی لیڈر بنے ہیں نا ہماری غلطی ہے, ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں سنا. ہم نے بھی بڑوں کو جی ساری کہا, ان کی غلط بات کو بھی مان لیا, ان کے غلط فیصلوں کو بھی مان لیا. اور یہ بھی میری آج رات آپ سے درخواست ہے, کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں کسی ایک بندے کو کہہ رہا ہوں. یہ بھی ہم پہ لعنت ہے کہ جو کو کہے ہم کر لیں. خدا نے تو مجھے اور آپ کو آزادی کی روح دی ہے, اور ہم جان بوجھ کے غلام بننا چاہتے ہیں. ملعون ہے وہ شخص جو کسی بشر پر توکل کرتا ہے. میرا اور آپ کا توکل کس پر ہے؟ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ, اور جن باتوں کا حکم میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. اور تو نے اپنی رات کی زندگی شیر کرنا, گھر بیٹھے, رخ چلتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا. کتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں جو بائبل کی سٹوری رات کو سنا کے سوتی ہیں. ہماری تو مائیں, دادی, نانیاں بڑی سادہ تھی بیچاری, جو کچھ سنتی تھی وہی سنا دیتی تھی. کہتے آئے میں آپ بات سناتی ہوں. اور بات کیا ہوتی تھی؟ بائبل کی سٹوری جو آج بھی ہمارے خون میں, ہماری رگوں میں گھومتی ہیں. وہ چیزیں سادہ باتیں. بیٹا کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی, جی کر کے بولنا ہے, رستہ دینا ہے. کسی بوڑھے کو, بزرگ کو دیکھیں اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے بھاری, اٹھا کے اس کے گھر تک چھوڑ کے آنی ہے. آج کل تو بچے اپنے باپ کی چیز کو نہیں پکڑتے. باپ چلتا ہے نا وزنی چیز اس کے ہاتھ میں ہو, اور لڑکے وہ اسے نہیں پکڑتے. کس کا قصور ہے؟ ماحول کا قصور, جس کو مرضی قصوروار ٹھہرا لے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم قصوروار ہیں. آج سے نئے سال میں قدم رکھنے سے پہلے بڑی گہری باتیں ہیں, کچھ کل صبح سناؤں گا. ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ صبح آئے گے؟ کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں, وہ کل سناؤں گا. اور وہ سادہ باتیں ہوگی, اور آپ کی اپنی شخصی باتیں ہوگی, آپ کے گھر کی باتیں ہوگی, آپ کی سماج کی باتیں ہوگی, آپ کی گلی محلے کی باتیں ہوگی. کیونکہ میں اور آپ اس دور میں, جس دور میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, میری اور آپ کی جو شخصی زندگی ہے, جو ذاتی زندگی ہے, وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی. آئے ہم آج رات اپنی ذاتی خامیوں کو, کمزوریوں کو, کوتاہیوں کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ اچھی سوچ کے ساتھ مثبت انداز سے نئے سٹائل سے کہنے نا, what is my style? کون سا it's my style؟ برا کے اچھا,
नए अंदाज से, नए स्टाइल से फिक्र करें, अच्छी सोच के साथ, अच्छे रवैये के साथ, अच्छी बातें सुनने के आदी बने, फिक्र अंगेजी करें, अदब और एहतराम के साथ जिए और दूसरों को भी जीने दें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। ऐ खुदावंद हम में फल भी नहीं, लेकिन ऐ खुदावंद हम तेरे पाक रूह की हदायत मांगते हैं, अपनी लियाकत पर नहीं, अपनी खूबियों पर नहीं। खुदावंद तू हम पर रहम कर और ऐ खुदावंद अपने कलाम पर अमल करने का फजल बख्श और हमें शुक्रगुजार दिल से भरे रख। खुदावंद इस जिंदा और मुयस्सर कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए, इस घराने के लिए, हज़रत जमात के लिए, क़वाइद के लिए और जितनी खुदावंद तूने हमें बरकतें बख्शी, तेरा दिल से शुक्रगुजार आते हैं। और ऐ खुदावंद मिन्नत करते हैं ये नया साल जो तू हमारी जिंदगियों में बख्शा चाहता है, खुदावंद हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी कर, हमारी खताओं और गलतियों को माफ कर। और ऐ खुदावंद हम अमली तौर पर तुझे जाने और तेरा कलाम और तेरा रूह खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करे। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंद दा बड़े बड़े काम जो करता। शुक्र करो तुसी अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर में रखो। Yeah.
आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हुए अपनी शुक्रगुजारियां, दरखास्तें, मनाजातें तेरे हुजूर रखते हैं। तो इन हदिये को भी और हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा। हमारी खताओं, गलतियों, कसूरों को माफ कर। नए साल में कदम रखने से पहले हमारी सोच को तब्दील कर, हमारे रवैयों को बदल, ताकि हम नई सोच के साथ, नए अज़म के साथ, तेरे खौफ में रहते हुए नए साल का आगाज करें। दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों की मदद और रहनुमाई करने के लिए तैयार रहें। खुदगर्जी से हमें बचा, क्योंकि आज का इंसान खुदगर्ज है। हम इकरार करते हैं, हम एतराफ करते हैं, हम तेरे आगे इस बात का इजहार कर रहे हैं, खुदा हमसे बहुत सारी गलतियां, हमसे गुनाह सरजद हुए, लेकिन तेरा कहर टल गया और तूने मेरी और मेरी कलीसिया की जिंदगी में, अपने लोगों की जिंदगी में नए साल का सामना दे। तेरे इस रहम के लिए, फजल के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग इस वक्त कमजोरी की हालत में हैं, हमने दुआ में याद करते हैं। जो लोग बीमारी के सबब से घरों में हैं, उनके लिए दुआ ख्याल करते हैं। मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, कोई अर्नेस्ट के लिए, महमूद के लिए, अपने भाई ऋषि दफ्तर के लिए, और वो लोग जो खुदा सफर में हैं, हम सदरुद के लिए भी दुआ ख्याल करते हैं और मिन्नत करता है खुदा को हम सबको अपनी पनाह मिले, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का सबब है। हमें दुआ का फजल अता फरमा। नया साल हम सब के लिए बरकतों का, खुशियों का सबब ठहरे। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए, हमारी इस इबादत को देखते हैं यूट्यूब पे जाकर। हम उन्हें भी नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं और आप सबको भी कि नया साल आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। सेंट जॉन्स टीवी, या जब अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब में जाके देखें, आपको जितनी इबादत हमारी हो रही हैं या हुई हैं, आपको वहाँ पे मिलेंगी। आप ज़रूर देखें, शामिल हों, कोई मशवरा हो आप हमें दें। और हम तमाम लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। बेशक वो बैरून मुल्क है, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनका प्यार सेंट जॉन्स चर्च के साथ। हम सेंट जॉन्स के बुजुर्गों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आप सबकी मौजूदगी के लिए भी। और दुआ है कि इसी तरह से हम सब मिलकर सेंट जॉन्स चर्च की तरक्की के लिए काम करें, ताकि मेरी और आपकी खुदाएं मुआफ हो जाए। जो ही कलमाते बरकत हो, आप लोग ग्राउंड में जाएं, वहाँ पे बच्चे थोड़ी सी आतिशबाजी करेंगे, स्टाइल है ना अपना अपना, और शुक्रगुजारी हर तरीके से करेंगे। फिर आपके लिए सूप का इंतजाम किया गया, एक दूसरे को जरा बचाएं, कपड़ों को बचाएं, सूप में शामिल हो। आपकी खिदमत के लिए इंतजामिया ने तैयार किया, सारी इंतजामिया की, टॉयलेट के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, जितनी मिनिस्ट्रीज हमारे पास है, आप सबकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपने सारे काम किए, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आप सबको बरकत की दुआ देते हैं। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से है हम सब खड़े हैं। और जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म भी दिया और सिखाया, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाबा जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर। हमारे लोग आज बख्श दे, और जिस तरह हम अपने मुसीबत को माफ करते हैं, तो भी हमारे मुसीबत को माफ कर।
हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, और बादशाह कुदरत जला हमेशा करते रहे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप भी तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा खानदानों के साथ, बेरोजगार खानदानों के साथ, बेऔलाद खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए।